Hello, my cheerful and lovely children. How are you all? Welcome back to another super cool, super interesting biology live session on the wonderful and beautiful platform of Avanti. Yeah, so this is lecture number 7, and we are going to learn about inheritance and variation. We are learning this chapter, right? Inheritance and variation. Yes? So this is the chapter name for Maharashtra board. And for CBSE board, the chapter name is different. The chapter name is Principle of Inheritance and Variation, right? But content is same in both the chapters. In CBSE as well as Maharashtra board, content is same. Cool? Did you all write the test? Can you all turn the videos on so that I can see you fast? Make it quick. Real fast. Real fast का मतलब समझ आता है ना? हाँ, Samiksha has done it. Awesome. Hello, Samiksha. Others? Test था ना? There was a test on this Sunday, right? The previous Sunday there was a test, no? Akshara, Samiksha. How was the test? Did you do it? Did you do it well? No. Did not do it well. Test was not there. Okay, I'll unmute you. ठीक है. Wait, Samiksha, I will unmute you. You can speak, huh? Samiksha. Yes, I have sent a request to you. You can unmute yourself. They have only sent the test of maths. They were not able to send biology test. Acha, you did not write any bio test. No, because they have not sent that link to us. So which test did you write, Samiksha, up to Only now? math students were able to give the test. Bio is not attended. So math student wrote only maths test. Yes. ठीक है. But what I know, yesterday only I got to know that you wrote one test. ठीक है, I will talk to them. ठीक है, I'll talk to them that you did not write test. No one wrote the test, no? Please click on no. Please click on no so that I get to know. Did you write the test or not? No one could write the test. Bio test. I'm talking about bio test. Production in plants, right? ठीक है. Okay. I'll talk to them and then I'll get back to you. Why you did not write the test? Priyanka, you wrote the bio. What happens inside them that is not required for us now. ठीक है, हमें बस एग्जाम्पल जानना है. ओके ठीक है, ये नीट वगैरह बच्चे जो पढ़ते हैं ना, उनको थोड़ा सा डिटेल थोड़ा और जानना है, बट अदरवाइज आपके लिए सफिशिएंट है. ठीक है, बोर्ड्स के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है. फिर हमने प्लियोट्रॉपी सीखा कि व्हाट इज प्लियोट्रॉपी. प्लियोट्रॉपी में एक जीन मल्टीपल सिम्टम्स देंगे आपको, एक जीन मल्टीपल कैरेक्टर्स देते हैं, है ना. तो प्लियोट्रॉपी और पॉलीजेनी दोनों ऑपोजिट है. हमने सीखा था ना, प्लियोट्रॉपी में क्या हुआ, एक जीन से मल्टीपल कैरेक्टर दिखते हैं और पॉलीजेनिक में 2 से ज्यादा जीन एक कैरेक्टर को देते हैं, है ना. फिर हमने क्या सीखा था, एक ही जीन के बीच में इंटरेक्शन हो सकता है. मान लो ये जीन है तो जीन में 2 अलील होते हैं, तो इन दोनों के बीच तो इंटरेक्शन हो ही सकता है, राइट. तो वो इंट्राजेनिक था. हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ा जिसमें दोनों ही एक्सप्रेस नहीं होते कंप्लीटली. हमने को डोमिनेंस पढ़ा जिसमें क्या होता था, दोनों ही इक्वली एक्सप्रेस होते थे. सबके दिमाग में ये सब चीजें रन हो रही है, राइट, जो मैं बोल रही हूँ, राइट. फिर मल्टीपल एलेलिज्म क्या था, मल्टीपल एलेलिज्म में क्या सीखा था हमने कि जनरली एक जीन के 2 अलील होते हैं. अगर किसी जीन के 2 से ज्यादा अलील होंगे वो मल्टीपल एलेलिज्म होगा. जैसे हमारे ब्लड ग्रुप का जीन आई, उस आई जीन के हमने 3 अलील देखे, ए बी ओ, तो हमारा ह्यूमन ब्लड ग्रुप जो है वो मल्टीपल एलेलिज्म भी शो करता है. सिमिलरली
हमने देखा हमारा ब्लड ग्रुप, अगर ए और बी अलील होता है तो दोनों इक्वल एक्सप्रेस करते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप हो जाता है ना, हमने वो भी सीखा था। इन सब चीजों में एक चीज कॉमन थी कि इनका जीनोटाइप सेम था, है ना। मेंडल ने जो भी हमें बताया उसी के जैसा इनका जीनोटाइप था, लेकिन सिंस वो इंटरैक्ट करने लगे थे, तो अलील इंटरैक्ट करने लगे एक दूसरे से, उनका फिनोटाइप डिफरेंट आने लगा था। जीनोटाइप रेशियो सेम था, फिनोटाइप कैरेक्टर्स डिफरेंट आने लगे थे, है ना। ये सब तो एग्जाम्पल है। फिर हमने ये सीखा था कि रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस, मेंडल के सक्सेस का रीजंस क्या है। मैंने एक होमवर्क दिया था कि आप प्लीज कर लो, मैंने बता दिया था बट मैंने डिक्टेट नहीं किया था आपको लिखाने के लिए, मैंने बोला बुक खोल के आप लिख लोगे। सबने किया है ये होमवर्क? प्लीज क्लिक ऑन यस अगर आपने किया है तो। रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस, बहुत अच्छी बात है, बच्चे बहुत ऑनेस्ट भी है। देयर इज वन हु डिड नॉट डू इट। बाकी अरे आप क्लिक कर दो बस यस और नो पे, मुझे सीख पता तो चलना चाहिए कि आप हो यहाँ पे। हाँ चलो ठीक है, इतने सारे बच्चे हैं, जल्दी फास्ट। जिससे भी टाइप कर रहे हो फोन से कीबोर्ड से, एकदम बढ़िया से टाइप करना है हमको, यूज करना है हमें उसे। यस अदर्स, अभी भी यस ज्यादा है, नो कम है। आई एम हैप्पी, बहुत लोगों ने किया है, बहुत लोगों ने नहीं किया है। अदर्स जिन्होंने कुछ भी क्लिक नहीं किया, उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या रिकॉल करा है? हाँ तेजू, ठीक है। देखो, तो रीजंस फॉर मेंटल सक्सेस मैंने बोला था होमवर्क में करना, उन्होंने प्री प्लान किया था, है ना। उसका लाइफ स्पैन छोटा होता था, बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंसिडर किया, लार्ज ग्रुप लिया, ये सारे रीजन थे मेंडल के सक्सेसफुल होने के। फिर मेंडल का जो वर्क उन्होंने 1866 में पब्लिश किया, तो अपना काम उन्होंने 1866 में पब्लिश कर दिया, लेकिन वो रिकॉग्नाइज नहीं हुआ क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा नहीं था, है ना। उस समय मेंडल ने मैथमेटिक्स यूज किया, लोगों के दिमाग में वो घुस ही नहीं रहा था कि क्या मैथमेटिक्स ने यूज करा है बायो में, है ना। ये सारे रीजन थे कि मेंडल का काम रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, लोग उसको फेमस नहीं समझे, बोले हाँ ठीक है मेंडल ने काम किया। लेकिन 3 साइंटिस्ट आए थे, है ना, 1900 में, ह्यूगो ड्यूबराइस, कोरेंस एंड टेशर। उन्होंने जब पढ़ना स्टार्ट किया, उन्होंने पाया कि नहीं, जो मेंडल बोल रहे थे वो करेक्ट बोल रहे थे, तो उन्होंने मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया, है ना। ह्यूगो ड्यूबराइस, कोरेंस एंड टेशर। आई होप आपको मेरी चीजें समझ आ रही है ना। ये सब हम पढ़ चुके हैं। फिर 1903 में ऐसे लोग आए जो क्रोमोसोम के साथ कुछ कुछ कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया। कौन थे वो? सटॉन एंड बॉवेरी। उन्होंने बोला भाई जीन वीन सब पता है हमें, बट ये जीन होता कहाँ है? जीन क्रोमोसोम्स में होता है, क्रोमोसोम जीन को कैरी करता है ना। देखो, क्रोमोसोम सोमैटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। जब भी गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो होमोलोगस क्रोमोसोम सेग्रीगेट कर जाते हैं, इसीलिए हर गैमेट में एक क्रोमोसोम पाया जाएगा। हर गैमेट में एक टाइप का सिर्फ एक क्रोमोसोम होगा। अगर वो सोमैटिक सेल होगा तो एक क्रोमोसोम दो बार होंगे। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं जो बोल रही हूँ। ये सब हमने सीखा था ना, ये क्रोमोसोम एक गाड़ी की जैसा काम करता है, किसको कैरी करता है? पैसेंजर क्या है इसका? जीन। फिर हमने सीखा था अगर सोमैटिक सेल्स है तो सोमैटिक सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? एक ही क्रोमोसोम 2 बार होता है, एक टाइप का क्रोमोसोम 2 होता है उनके पास। क्रोमोसोम नंबर 1 2 होंगे, क्रोमोसोम नंबर 2 2 होंगे, क्योंकि एक फादर से और एक मदर से आता है ना। तो वो जो क्रोमोसोम्स है उसको हम होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं, जिनके पास सेम टाइप की जीन्स होती है ना। एक ही लोकेशन पे सेम टाइप के अलील जो होंगे उसको हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। ये सोमैटिक सेल्स में हो गया। जब वो मियोसिस करेंगे मतलब वो गैमेट बनाएंगे, रिडक्शन करेंगे। जब मियोसिस करते हैं तो होमोलोगस जो क्रोमोसोम है वो सेग्रीगेट कर जाते हैं। देख लो आप, यहाँ पे भी 1 क्रोमोसोम है, यहाँ पे भी 1 है,
पहले सोमैटिक सेल्स में दोनों साथ थे, जब गैमेट बनता है दोनों डिवाइड हो जाते हैं, है ना। फिर साइटोकाइनेसिस होगा, एक सेल से दो सेल आपको दिख रहा है ना। इसमें एक क्रोमोसोम, दो तीन क्रोमोसोम, इसमें भी तीन क्रोमोसोम अलग अलग हो गए, है ना। हाँ प्रियंका, पेयर होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम 23 पेयर्स होते हैं। तो अगर मियोसिस होगा तो एक सेल में 23 आएगा, दूसरे सेल में भी 23 आएगा। ये सब हमने सीखा है ना। फिर हमने क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, है ना। ये क्रोमोसोम होता कैसा है। अगर आपको क्रोमोसोम के बारे में पढ़ना है तो कब पढ़ोगे आप? क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखना है, कौन से स्टेज में पढ़ोगे? चलो आंसर दे दो फटाफट, एकदम फास्ट, गिव मी द आंसर। क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी को पढ़ना है। यस तेजू, वंडरफुल। अदर्स? क्रोमोसोम, हाँ प्रियंका, सृष्टि, सबने दे दिया आंसर। अदर्स क्या कर रहे हो आप लोग? मेक इट फास्ट। अच्छा चलो, अगर आपको टाइप करने में प्रॉब्लम है ना तो आप बस क्लिक कर दो यस पे। दीक्षा, वंडरफुल, क्लिक कर दो यस पे, क्योंकि यस पे क्लिक करना मुश्किल नहीं, आई नो। अगर आप मोबाइल भी यूज कर रहे हो आप यस पे क्लिक कर सकते हो। चलो बहुत लोग यस पे क्लिक कर रहे हैं, इजी। सबको पता है ना कौन सा फेज पे पढ़ेंगे उसको? मेटाफेज में पढ़ेंगे। मेटाफेज में क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को हम अच्छे से पढ़ सकते हैं क्योंकि वो अच्छे से दिखता है वहां पे, है ना। तो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम किससे बना होता है? डीएनए होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है। और क्रोमोसोम का फंक्शन क्या है? इट इज द कैरियर ऑफ हेरिडिटी, है ना। एक पेरेंट से एक बच्चे में जाता है वो, कैरियर ऑफ हेरिडिटी। कैरेक्टर्स पेरेंट से बच्चा लोग का जनरेशन में जाता है, नॉर्मल लैंग्वेज में, है ना। अब स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम हमने सीखा था कि देखो भाई, ये जो धागा के जैसा है, जो थ्रेड के जैसा है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोनिमेटा। उस थ्रेड के ऊपर जो छोटे छोटे राउंड राउंड बबल जैसे है ना, उसको हम बोलते हैं क्रोमोमियर। क्रोमोसोम का जो लास्ट एंड पार्ट होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? टीलोमेयर। क्या बोलते हैं? टीलोमेयर। फिर सेंट्रोमियर बोलते हैं इसको, जहां पे क्रोमोसोम अटैच है। पहला कॉन्स्ट्रिक्शन है जहां पे, द फर्स्ट कॉन्ट्रिक्शन, उसको हम सेंट्रोमियर बोलते हैं। वहां पे एक हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको काइनेटोकोर बोलते हैं, है ना। इस कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए हमने दो चीजें सीखी थी। प्राइमरी सेंट्रोमियर होता है और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन आपका सैटेलाइट क्रोमोसोम हो सकता है या न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग सेंटर हो सकता है। सैटेलाइट क्रोमोसोम आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज होता है, जो मैंने बोला था कि हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, है ना। दीपाली ने बोला था मैम अभी जानना है हमें, है ना। So I remember that. Others? किसी को कोई डाउट है? टॉपिक विच वी आर गोना स्टार्ट इज सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। ऑलराइट, चलो सीखते हैं इसके बारे में फिर। ओके ये ब्यूटीफुल नहीं बना, इसको ब्यूटीफुल बना देते हैं थोड़ा। तो देखो कैसे कैसे चीजों की डिस्कवरी हुई। हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा क्रोमोसोम होगा तो ये मेल कहलाएगा, कौन सा क्रोमोसोम होगा तो ये फीमेल कहलाएगा। ओके, सो हाउ आर वी गोइंग टू डिटरमाइन कि which set of chromosome is going to tell us that it is a male or it is a female, right? तो वो चीज को हम बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, उनके जेंडर को पता करना। Our work is to find out the gender of that organism. तो हम कुछ चीजों की सीखेंगे, हम ह्यूमन बीइंग्स का सीखेंगे, ठीक है। हम बर्ड्स के सेक्स डिटर्मिनेशन को देखेंगे और हनी बी का देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो आपको पता होना चाहिए क्रोमोसोम्स के बारे में, जो आपको पता है क्रोमोसोम्स के बारे में आपको पता है, ठीक है। लेकिन
ये दो तरह के होते हैं। एक ऐसा क्रोमोसोम होता है जो कॉमन होता है, जो क्या होता है, कॉमन होता है। एक ऐसा क्रोमोसोम होता है जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि वो मेल है या फीमेल है। समझ आया जो मैं बोली? एक क्रोमोसोम सेट होगा जो नॉर्मल होगा, रहेगा ही सब में कॉमन। दूसरा होगा जो आपको बताएगा एक्चुअल में कि दैट ऑर्गेनिज्म इज अ मेल और फीमेल, है ना? तो क्रोमोसोम एक होता है ऑटोसोम, एक होता है एलोसोम। Allosome is also known as by the name of sex chromosome. Allosome or sex chromosome. Yes, Teju, right? Binsi, you are right. ठीक है? So allosome or sex chromosome. I think now it is clear to you कि ऑटोसोम क्या होंगे और एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम क्या होंगे। तो एलोसोम वो क्रोमोसोम्स होंगे दैट विल डिटरमाइन द जेंडर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इट विल डिटरमाइन द जेंडर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, है ना? ये आपके बहुत तरह के हो सकते हैं, एक्स एक्स हो सकते हैं, एक्स वाई हो सकते हैं, जेड जेड हो सकते हैं, जेड डब्ल्यू हो सकते हैं, बहुत तरह का वैरायटी। ठीक है, ये सब हम सीखेंगे, बट हमें ये सीखना है कि ये जो क्रोमोसोम है, आप सिर्फ इसको देख के पता कर सकते हो वो मेल होगा या फीमेल होगा, मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, अब ऑटोसोम में आ जाओ। तो सेक्स क्रोमोसोम को छोड़ के जो भी क्रोमोसोम्स होंगे वो क्या होंगे, ऑटोसोम होंगे, है ना? अपार्ट फ्रॉम द सेक्स क्रोमोसोम आपके जो भी क्रोमोसोम्स होंगे वो क्या होंगे, ऑटोसोम होंगे, है ना? जैसे अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात कर लूं एग्जाम्पल के लिए, तो हमें सबको पता है 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, 23 पेयर का मतलब 46। तो मैं देखो क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे, 22 पेयर्स का मतलब कितना हुआ, 44 क्रोमोसोम। ध्यान से देखो, थोड़ा अटेंशन ज्यादा चाहिए मुझे अभी, आई नीड मोर अटेंशन, इट्स देयर इन योर सिलेबस। ठीक है, तो 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम मतलब 44 क्रोमोसोम, है ना? इसमें क्या रिमेनिंग है, एक ऐड कर दो तो 45 हो जाएगा, एक और ऐड कर दो 46 हो जाएगा। मतलब कितने रिमेनिंग है, 2 क्रोमोसोम रिमेनिंग है ना? तो आप देख लो, 2 क्रोमोसोम मैं यहाँ लिख दूंगी, दिख रहा है क्या, एक्स एक्स 45 क्रोमोसोम 46 क्रोमोसोम, एक्स वाई 45th क्रोमोसोम 46 क्रोमोसोम। ठीक है, क्या समझ आया इससे? कितने ऑटोसोम्स है ह्यूमन बीइंग में, जल्दी से बोलने का, कितने ऑटोसोम्स है, हाउ मेनी ऑटोसोम्स आर देयर इन ह्यूमन बीइंग्स? 44। अगर पेयर में बोलो तो 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम जो सब में एक जैसे हैं, है ना? ऑलमोस्ट सब में, उससे पता ही नहीं चलेगा। आप उसको अगर पढ़ोगे, इफ यू गो एंड स्टडी अबाउट देम, यू विल नॉट नो कि वो इंसान मेल है कि फीमेल है। सिर्फ 2 क्रोमोसोम ऐसे हैं जो आपको बता देंगे कि वो मेल है या फीमेल है। उस क्रोमोसोम को हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं या एलोसोम बोलते हैं। ये जो है ना एक्स एक्स और एक्स वाई, ये आपका बर्ड्स में होता है। ठीक है, ये वाला जो है वो बर्ड्स में होता है, हम सीखेंगे उसको भी। ये बर्ड्स का कंडीशन है और ये वाला ह्यूमन का कंडीशन है। ह्यूमन में भी होता है ऐसा ही, एक्स 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 वाई, और ड्रोसोफिला में भी यही होता है, एक्स 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 वाई। बर्ड्स में होता है जेड 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 डब्ल्यू। सो 22 ह्यूमन बीइंग्स अगर एग्जांपल लोगे तो एक्स एक्स आपको क्या देगा, फीमेल देगा, और एक्स वाई आपको क्या देगा, मेल देगा। ह्यूमन बीइंग में भी और फ्रूट फ्लाइज में भी, है ना? ड्रोसोफिला, फ्रूट फ्लाई या श्रुति, ह्यूमन में भी और ड्रोसोफिला में भी सेम चीज फॉलो होती है, सेम चीज फॉलो होगी। ठीक है, ड्रोसोफिला में भी एक्स एक्स फीमेल होगा और एक्स वाई मेल होगा।
ड्रोसोफिला, फ्रूट फ्लाई भी बोल सकते हो इसको, ठीक है, फ्रूट फ्लाई। ओके, तो ह्यूमन बीइंग और ड्रोसोफिला में सेम टाइप का एलोसोम होगा जो मेल और फीमेल को डिटरमाइन करेगा। अगर दोनों एक्स होंगे तो वो फीमेल होंगी। आई होप अभी तक आपको ये समझ आ गया होगा कि मैं ये फीमेल के लिए ड्रॉ करती हूँ और मैं ये मेल के लिए ड्रॉ करती हूँ, है ना। बस डिफरेंस क्या है ह्यूमन बीइंग्स और ड्रोसोफिला के क्रोमोसोम में? ह्यूमन बीइंग के पास टोटल 22 पेयर्स और 1 पेयर, टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, है ना। लेकिन ड्रोसोफिला के पास क्रोमोसोम नंबर कम होते हैं। किसी को पता है कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं ड्रोसोफिला में? ड्रोसोफिला में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं? एनीवन रिमेम्बर्स? किसी को भी पता है? एनीवन नोस ड्रोसोफिला में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं? एनीवन रिमेम्बर्स दैट? किसी को याद नहीं है? तो ड्रोसोफिला में 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, राइट। ह्यूमन बीइंग्स में कितने होते हैं? 23 पेयर्स। और ड्रोसोफिला में कितने होते हैं? 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। आप ऐसे नोट करके लिख सकते हो कि ड्रोसोफिला में कितने होते हैं क्रोमोसोम, इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। तो इसमें ऑटोसोम कितने होंगे? 3 पेयर ऑटोसोम होंगे और 1 पेयर क्या होगा? सेक्स क्रोमोसोम होगा। समझ आ रहा है क्या? Has everyone understood what I am saying? Please click on yes अगर समझ आया मैंने जो बोला। चलो अच्छी बात है। अब देखो, ये जो एक्स बॉडी आपको दिख रही है ना, एक्स क्रोमोसोम, इसको किसने डिस्कवर किया था? किसने डिस्कवर किया था? आपके पहले पैराग्राफ में ये लिखा था, इन द फर्स्ट पैराग्राफ, वेदर इट इज सीबीएसई और महाराष्ट्र, आपको फर्स्ट पैरा में लिखा है कि ये एक्स बॉडी किसने डिस्कवर किया था। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है, ये 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है। एक्स बॉडी वॉज डिस्कवर्ड बाय whom? हेनकिंग। किसने डिस्कवर किया था? हेनकिंग। हेन मुर्गी, किंग राजा, राइट। तो हेनकिंग ने डिस्कवर क्या किया था? एक्स बॉडी को। हाँ, हरमन हेनकिंग, यस तेजू। वाई बॉडी को किसने किया था डिस्कवर? स्टीवेंस ने किया था। किसने किया था? स्टीवेंस ने किया था। जनरली ये बुक में नहीं लिखा है, बट सिंस हम सीख रहे हैं एक्स बॉडी हु डिस्कवर्ड, वी शुड आल्सो नो कि वाई किसने डिस्कवर किया, राइट। वी कांट जस्ट इग्नोर वाई, है ना। तो ये वाई का हो गया और ये एक्स का हो गया डिस्कवरी, है ना। बस आपको ये जानना है कि एक्स बॉडी हेनकिंग ने डिस्कवर किया और वाई बॉडी स्टीवेंस ने, ठीक है। अब हम टाइप सीखते हैं। टाइप्स, एक्स 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 वाई टाइप, कुछ समझ आ रहा है इससे? एक्स 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 वाई टाइप, इससे कुछ समझ आ रहा है मैंने क्या लिखा है? मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका सेक्स क्रोमोसोम एक्स 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 वाई है। एक्स एक्स क्या है? फीमेल है, और एक्स वाई क्या डिनोट करता है? मेल, है ना। तो आप एक चीज देखो ध्यान से, हमने सीखा है 2 टर्म, होमोगैमेटिक कंडीशन, हेटेरोगैमेटिक कंडीशन। आप बुक पढ़ोगे ना, बहुत लंबा चौड़ा स्टोरी लिखा हुआ है। व्हाट आई एम टेलिंग यू, ये एकदम छोटे में आप सीख जाओगे, ठीक है। एक्स वाई एक्स एक्स हमने सीखा था होमोगैमेटिक और हेटेरोगैमेटिक। इसको देख के मुझे बताओ, फीमेल होमोगैमेटिक है या हेटेरोगैमेटिक है? फीमेल होमोगैमेटिक है या हेटेरोगैमेटिक है? जल्दी से मैसेज करो फास्ट। फीमेल जो है वो होमोगैमेटिक है या हेटेरोगैमेटिक है? सामिया हैज आंसर्ड, तेजू, श्रुति, गणेश्वरी हैज आंसर्ड, प्रियंका हैज आंसर्ड, ऑसम। हाँ बढ़िया,
आयुष एक बार आंसर चेक करो फिर से आप। एक जैसे है ना, जब एक जैसे होंगे तो होमो होंगे ना। हमने पढ़ा है ना होमोजीनियस मिक्सचर, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमो मतलब सेम, एक जैसा। तो इस केस में हम सीख रहे हैं फीमेल होमोगैमेटिक और मेल क्या है, हेटेरोगैमेटिक। हेटेरो मतलब डिफरेंट है ना, एक्स और वाई डिफरेंट है ना भाई, दोनों अलग अलग है ना एक्स और वाई। तो हेटेरोगैमेटिक अब किस में पाया जाता है, एग्जाम्पल तो मैंने अभी बता दिया था। ह्यूमन बींग्स में ऐसा पाया जाता है, हमारे में एक्स एक्स होगा, फीमेल्स में क्या होगा एक्स एक्स, वी हैव एक्स एक्स। मेल्स में क्या होगा एक्स वाई। उसी तरह फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला में क्या होगा, सेम चीजें होंगी। ये तो एनिमल्स हो गए। अगर कोई आपसे पूछेगा बेटा प्लांट्स बता दो, कोई ऐसे प्लांट भी है जो ऐसा फॉलो करते हैं? जनरली पूछते नहीं है, बट ठीक है मैं एक नाम दे देती हूँ आपको, कॉक्सीनिया। क्या, कॉक्सीनिया। कॉक्सीनिया एक ऐसा प्लांट है जिसमें क्या फॉलो होता है, एक्स 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 वाई टाइप। ये जरूरी नहीं है, जिसको भी याद नहीं करना है एकदम यू आर फ्री टू नॉट रिमेम्बर इट। ठीक है, फर्स्ट टाइम मेरी टीचर इज टेलिंग यू टू नॉट रिमेम्बर थिंग्स, राइट। याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, मैंने बस ऐसे ही बता दिया। ओके, आपको जो याद करना है वो ये है, ठीक है। होमोगैमेटिक हेटेरोगैमेटिक कंडीशन, एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग, ड्रोसोफिला। ठीक है, अब हम दूसरे केस में आते हैं, ठीक है। एक्स 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 ओ में आते हैं। दूसरा कलर यूज कर लो, चलो कर लेती हूँ। एक्स 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 ओ। अब ये एक्स 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 ओ में क्या है, एक्स एक्स, हम सेम चीजें डिस्कस कर रहे हैं, हम सेम चीजें डिस्कस कर रहे हैं। इसमें भी फीमेल क्या होगी, होमोगैमेटिक होगी। तो ये बता दो मुझे, एक्स एक्स क्या होने वाले हैं, फीमेल होने वाले हैं। एक्स ओ क्या होने वाले हैं, दोनों अलग है ना, तो एक्स ओ। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लो इसके, कॉकरोच, ठीक है, एक एग्जाम्पल सीख लो कॉकरोच। और भी एग्जाम्पल्स है, मैं नहीं बता रही हूँ, ठीक है। एस्कैरिस में भी ऐसा ही होता है, बट जितना ज्यादा बताऊंगी आप उतना कंफ्यूज होगे, इसलिए आप कम जानो, जो जरूरत है बस उतना ही जानेंगे, क्योंकि हमें बहुत कुछ सीखना है, राइट, अच्छे से सीखना है, बहुत कुछ सीखना है। ठीक है, तो हम ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे। एक्स 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 ओ, अभी हमने जो दो एग्जाम्पल सीखे उसमें हमने क्या सीखा, जो मेल था वो हेटेरोगैमेटिक था और जो फीमेल था वो होमोगैमेटिक थी, सेम टाइप ऑफ एलीन। ये दोनों सेम एग्जाम्पल्स हैं, है ना, फीमेल होमोगैमेटिक और मेल हेटेरोगैमेटिक, राइट। अब हम उल्टा देखेंगे, क्या उल्टा होगा, फीमेल क्या होगी, हेटेरोगैमेटिक। समझ आ रहा है ना, फीमेल हेटेरोगैमेटिक का मतलब अलग अलग एलील्स होंगे उसमें, और मेल होमोगैमेटिक होगा, मतलब दोनों एलील सेम होंगे। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, जेड डब्ल्यू जेड जेड, ठीक है। तो जेड डब्ल्यू जेड जेड क्या है, जेड डब्ल्यू इज हेटेरोगैमेटिक और नॉट, जेड डब्ल्यू हेटेरोगैमेटिक है या नहीं है, मतलब वो फीमेल है। जेड जेड होमोगैमेटिक है या नहीं है, हाँ है, बिल्कुल है, तो मतलब ये मेल है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स ले लो, बटरफ्लाईज हो जाएंगे, ठीक है, मोथ, बहुत सारे बर्ड्स में ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे, है ना, रेप्टाइल्स में होंगे। पहला आपका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बर्ड्स है, एग्जाम में जो पूछा जाता है ना वो बर्ड्स के रेस्पेक्ट में पूछा जाता है कि बर्ड्स में कैसा सेक्स क्रोमोसोम होगा। तो अगर ZW होगा तो आप क्या बोलोगे, वो कौन सा बर्ड है, फीमेल या मेल, फीमेल। अगर वो ZZ है तो वो क्या है, ZZ अगर है तो क्या है, होमोगैमेटिक, मतलब वो मेल।
प्लीज रिमेम्बर दिस, है ना। ये वाला जो साइन है वो फीमेल है, ठीक है, और ये वाला जो साइन है वो मेल है। Cool. So this is how we have learned the sex determination in birds, human beings. Cool. One more is very important, which is of honeybee. किसका है वो? honeybee से related है। ये मैं आपको कल सिखाऊंगी, ठीक है? Since time is not there, हम इसको कल सीखेंगे। honeybee को कल सीख लेंगे, linkage को सीखेंगे, ये दो टॉपिक अच्छे से सीखेंगे, and then we will see if time permits. We will start with disorders. हम chromosomal disorders सीखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? कोई भी डाउट किसी को? हनी बी का बहुत डिफरेंट मैकेनिज्म होता है, ठीक है, इसलिए हम उसको सेपरेटली सीख रहे हैं। हनी बी को हम सेपरेटली सीख रहे हैं। आई विल टीच यू, डोंट वरी। क्या है उसके अंदर, है ना? आपका होमवर्क है, आप ये फाइंड आउट करो कि आर्हेनोटॉकी क्या होता है। आर्हेनोटॉकी, प्लीज फाइंड आउट व्हाट इज आर्हेनोटॉकी, व्हाट इज आर्हेनोटॉकी। ठीक है, इसी के साथ आज की स्टोरी यही समाप्त होती है, ठीक है। थैंक यू सो मच। सब सीख रहे हो ना बायो? एवरीवन इज लर्निंग बायोलॉजी, राइट? रटना नहीं है बिल्कुल, बायो को समझना है, सब कुछ समझ सकते हैं, हमें बस सही तरीके से सोचना है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा 12th बोर्ड्स आ गया, हमें कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, भैया बैठ जाओ रट्टाफिकेशन करो, वैसे नहीं करना, ठीक है। वैसे बहुत मुश्किल होगी, हमें सारे सब्जेक्ट सीखने हैं ना, राइट? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड बायोलॉजी। अगर नहीं समझ आ रहा तो आप जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे सोचने की कोशिश करो, यू विल अंडरस्टैंड, है ना। कभी भी बुक पे डिपेंडेंट मत हो, हमेशा बुक बंद करके सोचो कि अगर ऐसे है तो क्या होगा। बस सोचो मत, सोच लिया तो उसको फिर देखो लिख के कि अगर मैं जो सोच रही हूँ करके देखती हूँ क्या रिजल्ट आते हैं। करो ना, कौन आ रहा है आपको डांटने को? कोई नहीं। इट इज साइंस, साइंस में तो यही फ्रीडम है, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। हिस्ट्री में वो फ्रीडम नहीं है। अगर आप आर्ट्स लिए होते ना तो ये फ्रीडम कभी नहीं होता आपको। जो लिखा है भाई वही पढ़ो, कुछ चेंज नहीं होगा उसमें, राइट? तो दैट इज हिस्ट्री। साइंस में दैट इज द ब्यूटी कि आप उसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। हाँ तेजू, हाँ एकदम सही इंफॉर्मेशन है आपका। मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप अपने बुक से पढ़ो एक बार, है ना। मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ बुक, है ना। गूगल में बहुत चीजें मिलती हैं हमें, दैट इज ट्रू, बहुत अच्छी बात है, हमें गूगल मिल गया है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलते हैं, लेकिन बुक से आपका इमेजिनेशन डेवलप होगा क्योंकि उसमें थियरी लिखा है ना, राइट? आयुष इट्स ओके आयुष, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रिवाइज करो, एकदम सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट बनोगे आप, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, गलतियां वी ओनली डू मिस्टेक्स ना, ह्यूमन बींग्स ओनली डू मिस्टेक्स, राइट? इट्स फाइन, एटलीस्ट आपने ट्राई किया, दैट इज रिक्वायर्ड। यस, चलो फिर कल मिलते हैं, या आपके टेस्ट की चीजें मैं एक बार बात करूंगी टीम से, आप एक बार चेक कर लेना उसको, ठीक है, जो मैंने बताया आपको, अपडेट एंड देन लॉग आउट, लॉग इन, चेक करो। कूल, चलो बाय, टेक केयर।